Jai Gurudev children. In this video today I will teach you lesson 4. The Swan. Swan is a bird children. This bird is a mostly white color with a long neck. Mostly they live in a lake or water. Okay. This is a swan. See, this is a picture. Maybe you know or you see this bird. Okay. First, I will read the chapter and I will explain also. Listen carefully how will I read. A flock of swans was flying south from the cold lands in the north. The swans were flying over the sea. They had flown over the water a day and a night, and a second day and a second night had not stopped to rest. It was a full moon night. The swans could see the dark water far below. They were tired, yet they did not stop and kept on flying. The senior strong swans led the way, with the younger and weaker ones following. First of all, underline new word and difficult word. First, underline flock, swans, south, north, over, sea, flown. Next, second, stopped, could, below, tired. Tired is a past form, second form of tire. Next, senior, strong, underline, younger, weaker. Okay, now I am going to explain children. बच्चों जहाँ फुल स्टॉप होता है या कॉमा होता है, दीज आर पंक्चुएशन. आपको शॉर्ट पॉज देना होता है, वहाँ रुकना होता है. दिस इज अ रीडिंग मेथड. ओके, सी what is the explanation. A flock means large number of bird swans, that is called flock. जब बहुत सारी ये swans हैं, that is called flock. Flock of swans was flying, बहुत सारी swans थी, was flying south, from south. कहाँ से जा रही थी? साउथ से. The cold lands, वो कोल्ड एरिया था. और कहाँ जा रही थी? Where? In the north, from south to north. The swans were flying over the sea. वो sea के ऊपर से उड़ रही थी. They had flown over the water. वो water के ऊपर से, flown is a third form of fly. तो ये water a day and night, full day, मतलब पूरे day और पूरे नाइट ये वो वाटर के ऊपर से ही उड़ रही थी, क्योंकि सी इज अ वेरी बिग, नॉट लाइक अ लेक. तो वो पूरा दिन और रात कंटिन्यू उड़ रही थी. अ सेकेंड डे एंड अ सेकेंड नाइट. सेकेंड डे भी कंटिन्यू फ्लाई कर रहे थे और एक सेकेंड नाइट भी. हैड नॉट स्टॉप टू रेस्ट. दे नॉट टेकन द सिंगल सेकेंड रेस्ट. इन लोगों ने एक भी रेस्ट नहीं लिया. It was a full moon night. Full moonlight they were flying. The swans could see the dark water far below. उनको, उन लोग को क्या दिखाई दे रहा था?
फार मीन्स फार अपोजिट ऑफ नियर, दूर से बिलो मीन्स अपोजिट ऑफ अपर, ओवर ऊपर से जब आप नीचे देखेंगे तो वो उनको डार्क वाटर दिखाई दे रहा था। दे वर टायर्ड, दे वर फीलिंग वेरी टायर्ड बिकॉज कंटिन्यू दे वर फ्लाइंग, येट दे डिड नॉट स्टॉप बिकॉज कंटिन्यू दे वर फ्लाइंग, दे डिड नॉट स्टॉप, वो रुके नहीं थे, एंड केप्ट ऑन फ्लाइंग, कंटिन्यू फ्लाइंग, दैट इज कॉल्ड केप्ट ऑन फ्लाइंग। द सीनियर स्ट्रॉन्ग, सीनियर मीन्स दोज आर वेरी एजेड या दोज आर वर्किंग वेरी लॉन्ग पीरियड, दैट इज कॉल्ड सीनियर। एंड स्ट्रॉन्ग स्वॉन्स, जो बहुत पुराने थे, बड़े थे, वो स्वॉन्स उनको रास्ता गाइड कर रहे थे। जो विद द यंगर एंड वीकर, जो यंगर थे, यंगर डू यू नो, दोज आर यंगर मीन्स जो छोटे होते हैं, वीकर जो वीकर थे, वंस फॉलोइंग, जो उनको फॉलो करते जा रहे थे। नेक्स्ट पैरा, अ यंग स्वान वॉज द लास्ट इन द लाइन, इट्स स्ट्रेंथ वॉज फेलिंग, इट फ्लैप्ड its wings and felt it could not fly any further. Then spreading its wings, it sailed down closer and closer to the water, while its friends flew further and further away, looking just like white spots in the moonlight. The young swan settled on the water and folded its wings. First, children, underline strength, failing, flapped. Underline in बच्चों in your book also. Further, spreading, wings, sailed, closer, and while, while, away. And next word, settled and folded. Underline. Now I am going to explain this para also. एक यंग स्वान था, यंग डू यू नो ऑलरेडी, यंग होता है और एक ओल्ड होता है। एक यंग स्वान था जो कि वॉज द लास्ट इन द लाइन, ही वॉज इन द लास्ट लाइन, वो सबसे लास्ट में था लाइन में। इट्स स्ट्रेंथ वॉज फेलिंग, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ, फिजिकल जो वो स्ट्रॉन्ग जो था वो नहीं था, उसकी स्ट्रेंथ जो थी, पावर जो थी, वो धीरे धीरे फेल हो रही थी। तो इट फ्लैप्ड, इट्स फ्लैप मीन्स टू मूव हियर एंड देयर, to move up and down to side like a flapping. जब birds side to side उड़ती हैं, up and down उड़ती हैं, that is called flapped. तो वो जो flapping उनकी थी, वो its wings, वो उनके जो wings थे, जो उसका young swan का जो wings थे, and felt it could not fly and further. वो feel कर रहा था कि वो अब fly नहीं कर सकता एनी फर्दर, अब वो आगे फ्लाई नहीं कर सकता, बिकॉज उसकी जो ताकत थी, स्ट्रेंथ थी, वो फेल हो रही थी, ऐसा वो फील कर रहा था। देन स्प्रेडिंग इट्स विंग्स, इट्स सेल्ड डाउन, वो जो फ्लाई करने का, जो आगे बढ़ने का वो होता है, वो डाउन फील कर रहा था, और जो उसके विंग्स थे वो स्प्रेड हो रहे थे। क्लोजर एंड क्लोजर टू द वाटर, वो कहाँ, क्लोजर मीन्स नियरर टू नियरर, वो कहाँ आ रहा था, धीरे धीरे वाटर के करीब आ रहा था। वाइल इट्स फ्रेंड्स फ्लू फर्दर, वाइल मीन्स जबकि, हिज फ्रेंड्स, उसके जो फ्रेंड्स थे वो बहुत आगे फ्लाई कर चुके थे। फ्लू, फ्लू इज अ पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फ्लाई। फर्दर अवे, बहुत आगे निकल गए। लुकिंग जस्ट लाइक वाइट स्पॉट्स, वो उसको कैसे दिख रहे थे, लग रहा था एक वाइट स्पॉट दिख रहे हैं, इतना दूर चले गए थे।
in the moonlight. In moonlight, he only looking like a white spots, his friend. The young swan settled. अब वो young swan, because he has no strength, so he settled, वहीं पे रुक गया, on the water and folded its wings, और अपने wings को fold किया. ओके, fold कर लिया means मोड़ लिया, क्योंकि वो he was not able.